آج کے درس کا موضوع ہے ماہ رمضان اور تقوی۔ آج کے درس کا جو مقصد ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، چونکہ رمضان ہمارے سامنے ہے اور اس رمضان سے بھرپور استفادے کے لیے یہ درس رکھا گیا ہے۔ درس کا جو عنوان ہے اس کے اندر ایک رمضان کا لفظ موجود ہے اور دوسرے تقوی۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان ایک مہینے کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی جتنی بھی مخلوقات بنائی ہے، ہر مخلوق میں سے کچھ چیزوں کو اللہ رب العالمین نے خاص فضیلت عطا فرمائی۔ جیسے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو انسانوں کے اندر انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے خاص مقام عطا فرمایا، اور انبیاء کرام میں بھی اللہ رب العالمین نے 5 اولو العزم رسولوں کو رسولوں کے اندر خصوصی مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو مہینے بنائے ہیں، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے رمضان کو چن لیا ہے اور اسے کچھ ایسی خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں جو سال کے کسی بھی مہینے کو حاصل ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی اپنی ایک سنت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے کچھ کو انتخاب کرتا ہے اور انہیں فضیلت اور خصوصیات عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کو سال کے 12 مہینوں میں 4 ایسی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی بھی مہینے کو حاصل نہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے اپنی آخری اور سب سے عظیم کتاب قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے، نزول کے آغاز کے لیے اللہ نے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا۔ رمضان کے مہینے میں ہی اللہ رب العالمین نے قرآن کے نازل کرنے کا آغاز فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ یہ بتانے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ بتانے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ آپ یہ سمجھو کہ 12 مہینوں میں جو مہینہ سب سے زیادہ اس لائق تھا کہ اس میں قرآن نازل ہو، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں میں سے ایک رات کا انتخاب کیا جو رات سب سے عظیم رات ہوگی، یہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اس رات کی عظمت کو بتانے کے لیے پوری ایک مکمل سورہ نازل فرمائی جس کا نام ہے سورہ القدر۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں اس رات کی فضیلت ذکر کرتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ جو قدر کی رات ہے، جو لیلۃ القدر ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ایک رات میں کے اندر عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کی رضا کے کام کرنا، اللہ رب العالمین کے سامنے بندگی کا اظہار کرنا، یہ 1000 مہینوں کی بندگی اور عبادت سے بہتر ہے۔ اور یہ رات صرف اور صرف رمضان کے اندر ہی ہے، کسی اور مہینے کے اندر نہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو ایک اور خصوصیت عطا فرمائی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ کام صرف رمضان کے اندر ہوتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اور اسی طرح سے جہنم کا دروازہ رمضان کے مہینے کے اندر بند کر دیا جائے۔ اور ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، اور وہ شیاطین میں جو شرکت ہے،
उन्हें भी जंजीरों में जकड़ दिया जाता है ताकि उनका शर, उनका फितना, उनकी गुमराही की हरकतें कम हो जाए। जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाना, जहन्नम का दरवाजा बंद कर दिया जाना, शयातीन को कैद कर दिया जाना, ये सारे इंतजामात अल्लाह ने सिर्फ रमजान के लिए रखे। रमजान के अलावा 11 महीनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये एहतमाम नहीं होता है, लेकिन रमजान के अंदर होता है, क्योंकि रमजान के अंदर जन्नत में दाखिला आसान हो जाए, जहन्नम में दाखिला मुश्किल हो जाए, और जहन्नम की तरफ बुलाने वाला, जन्नत से रोकने वाला जो इंसानी दुश्मन है शैतान, उसको जकड़ दिया जाता है ताकि बंदे अपने आप को जन्नत में दाखिल करा सके और जहन्नम से बचा सके। ये फजीलत सिर्फ रमजान। इसी तरह से ऐसी बहुत सारी इबादतें हैं जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माह रमजान के साथ खास कर रखा है। वो इबादतें दूसरे महीनों में इस दर्जे की और इस एतबार की नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर रोजा, जो एक ऐसी इबादत है जिसकी कोई मिसाल नहीं, और एक ऐसी अजीम इबादत है जिसका अज्र बहुत बड़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस रोजे को फर्ज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रमजान के महीने का इंतखाब किया। रमजान के अलावा किसी भी महीने में रोजा फर्ज नहीं है, नहीं फर्ज। इसी तरह से जो तरावीह की नमाज है, इशा के बाद बाजमात मस्जिद में अदा करना, ये खुसूसियत भी रमजान के अलावा किसी और महीने को हासिल नहीं। पूरी रात जाग करके अल्लाह की इबादत करना, 5 रातें 10 रातें पूरी रात जाग करके इबादत करना, ये रमजान के अलावा किसी और महीने में नबी से साबित ही नहीं कि आपने पूरी रात जाग करके इबादत की, बल्कि आप सो जाते थे। लेकिन रमजान के आखिरी अशरे में और रमजान की 5 ताक रातों में पूरी रात मुसलसल जाग करके इबादत करना, ये रमजान की खुसूसियत है। इसी तरह से रमजान के महीने के अंदर मुसलमानों के बीच में जो आपस में जो उल्फत है, जो मोहब्बत है, जो इज्तिमाइयत है, एक साथ रोजा शुरू करना, एक साथ रोजा इफ्तार करना, एक साथ तरावीह की नमाज अदा करना, रातों में इकट्ठा होकर के जागना, ये सारी जो इज्तिमाइयत आपको दिखती है, ये रमजान के अलावा दूसरे दिनों में नहीं दिखती। तो हमारे टॉपिक में जो एक लफ्ज है रमजान, ये बहुत ही अजीम महीना है और बहुत ही बाबरकत महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को बाकायदा इस महीने के आने की बशारत देते थे, खुशखबरी देते थे, और इसके अंदर जो इबादतें हैं उन इबादत के करने पर उन्हें मगफिरत का वायदा सुनाते थे। तो रमजान ये है। दूसरा जो लफ्ज है हमारे टॉपिक में वो है तकवा। तकवा क्या है? तकवा के माने होते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब और उसके गजब से बचने के लिए जो चीजें आप इख्तियार करें, जो असबाब आप इख्तियार करें, वही असबाब तकवा कहलाते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से बचाने के लिए जो भी काम, जो भी अकीदा, जो भी बात, जो कुछ भी आप करेंगे जिससे आप अल्लाह के अजाब से बच जाएं, वही तकवा है। और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल ही बताएंगे कि वो क्या चीज है जो आपको अल्लाह के अजाब से बचा सकती है। आप खुद से किसी चीज का इंतखाब नहीं कर सकते कि मैं ये करूंगा तो मैं अल्लाह के अजाब से बच जाऊंगा। अल्लाह और रसूल ही आपको बताएंगे कि आपको अल्लाह के अजाब से बचने के लिए क्या करना है, आपका अकीदा कैसा होना चाहिए, आपका अमल कैसा होना चाहिए, आपकी फिक्र कैसी होनी चाहिए, आपकी बातें कैसी होनी चाहिए, आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप अल्लाह के अजाब से बच सके। तो वो सारे अमाल, वो सारे अक़वाल, वो सारी चीजें जो आपको अल्लाह के अजाब से बचाएंगी, वही दरअसल तक़वा है। शरीयत की इस्तिलाह में तक़वा की तारीफ उलमा ने की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अहकाम हैं,
अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया है, उस हुक्म को अल्लाह के अजाब और उसके गजब के डर से मान लेना। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, आप इस हुक्म को मान लो, इसलिए क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको कहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर आपको अजर और सवाब अता फरमाने वाला है। और जो चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मना की हैं, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नशा आवर चीजों को हराम करार दिया है, तो आप इस हुर्मत को तस्लीम करके अपने आप को हर किस्म की नशावर चीजों से रोक लो, क्योंकि आपको डर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सजा देगा। तो अल्लाह के डर से अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को तस्लीम कर लेना और अल्लाह रब्बुल आलमीन के मना किए हुए कामों से अपने आप को रोक लेना, यही तकवा है। तो गोया टॉपिक का माना ही हुआ कि जो रमजान का महीना हमारे सामने मौजूद है, जो बहुत ही अजीम और बाबरकत महीना है, इस महीने का तकवा से क्या ताल्लुक है, इस महीने का तकवा से क्या रिश्ता है। जो रमजान का महीना है, दरअसल उसको अगर ये कहा जाए कि ये तकवा का महीना है, तो गलत नहीं होगा। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में आयातुस सियाम जहां पर बयान किया है, जहां पर सौम से मुताल्लिक सारी आयतें बयान की हैं, कुरान में अहकामात सियाम बयान किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका आगाज उस आयत से किया है जिसमें अल्लाह ने रोजे को फर्ज करार दिया है। क्या फरमाया? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज करार दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले की उम्मतों पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। तुम्हारे ऊपर रोजे क्यों फर्ज किए गए हैं? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर वो खूबी आ जाए जिसकी वजह से तुम अल्लाह के अजाब से बच सको। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे बकरा में आयातुस सियाम की जो पहली आयत है उसमें रोजे का मकसद बयान करते फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, इसलिए हमने रमजान के महीने में रोजा फर्ज किया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान के बहुत सारे अहकामात बयान करने के बाद जो सबसे आखिर में जो आयत करीमा का टुकड़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें भी जिक्र किया। फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हदें हैं। रमजान के जो अहकाम बयान किए गए हैं कि आपको रोजा रखना है, दिन में आपको खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, जिमा नहीं करना है। इसी तरह से अगर आप एतकाफ करते हो तो हालत एतकाफ में आपको बीवी से दूर रहना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन तमाम अहकामात की पाबंदी करना है। अल्लाह ने फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कवानीन हैं, ये अल्लाह की हुदूद है। फला तक़रबूहा, तो तुम उससे करीब मत जाओ। करीब जाने से भी इसलिए मना कर दिया कि आपको वो चीजें जो मना की है अल्लाह ताला ने, उसको तो अंजाम नहीं देना है, बल्कि उन चीजों से भी अपने आप को दूर रखना है जो आपको वहां तक पहुंचाने वाले वसाइल और जराए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून, फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे ही अपनी आयात को लोगों के लिए बयान करता है। किस लिए? लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो लोग तकवा वाले बन जाए। ये रोजे के अहकाम वाली आयत का आखिरी टुकड़ा है, यानी आयात सियाम का भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगाज तकवा के जिक्र से किया है और आयात सियाम की जो इख्तिताम है उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकवा का जिक्र किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रोजा है वो रोजा तो इंसान के अंदर तकवा पैदा ही करता है। मान लो आपने पूरे साल फजर से पहले उठकर कभी नहीं खाना खाया, कभी आपने उठकर नहीं खाया, लेकिन रमजान शुरू होगा तो आपको अजाने फजर से पहले उठ करके खाने से फारिग हो जाना है। यही अल्लाह का हुक्म है, यही रसूल का हुक्म है। अब एक रोजेदार क्या करता है? वो उठता है और फजर से पहले उठ करके सेहरी करता है। ये किस लिए है? क्योंकि अल्लाह और रसूल ने यही कहा है, यही तकवा है।
अल्लाह और रसूल की बात मान लेना अल्लाह के डर से, यही दरअसल तकवा है। सेहरी खाने के बाद अगर आपको किसी वजह से जरूरत महसूस हो रही, भूख की, प्यास की, तो आप पूरे दिन अब खाने पीने से दूर रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आपको दिन में मना किया है। आपको अल्लाह ने रोजे की हालत में, रमजान के दिनों में खाने से पीने से रोक दिया है, और आप अल्लाह की बात मान करके ही रुके हुए नहीं खा रहे। आपको भूख लगी है, आपको प्यास भी बहुत शदीद लगी है, क्योंकि आप बाहर से काम करके दोपहर में 2 बजे आ रहे हैं, लेकिन आप पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको अल्लाह ने रमजान के दिनों में रोजे की हालत में खाने पीने से मना कर रखा है। यही तकवा है, यही तकवा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो हुक्म दिया है उसको करना, और जिससे मना कर दिया है उससे अपने आप को रोक लेना, यही तो तकवा है। और रोजेदार पूरे महीने अमली तौर पर इसी तकवे की जिंदगी गुजारता है। मान लो आप तन्हा है, अकेले मौजूद, फिर भी आप खाने पीने को हाथ नहीं लगाएंगे, अकेले, कोई नहीं देख रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ तन्हा अपने कमरे में मौजूद हैं, आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन आप खाने पीने का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको रोकने वाली चीज सिर्फ एक है, वो है अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का डर। यही तो तकवा है। और एक रोजेदार मुसलमान पूरे 1 महीने ऐसे ही तकवा वाली जिंदगी गुजारता है। अच्छा, अभी इफ्तारी का टाइम हो रहा है, पूरे महीने आप मगरिब के बाद फौरन कौन स्पेशली बैठ करके कुछ खाता है? कोई नहीं खाता। सबने अपनी इतनी टाइमिंग है, आमतौर से नाश्ता करके बात करते हैं, मगरिब के बाद फौरन बैठ करके कोई नाश्ता नहीं करता। लेकिन इफ्तारी करना, ये चूंकि अल्लाह और रसूल का हुक्म है, इसलिए सारे मुसलमान मगरिब की अजान से पहले ही तैयार होते हैं कि अजान होगी तो हमें इफ्तारी करना है, हमें कुछ खाना है। ये कुछ खाने में भी आप दरअसल अल्लाह और रसूल के हुक्म की वजह से कर रहे हैं। यही तकवा है। तो गोया रोजा शुरू में भी, पूरे दिन भी और आखिर में भी एक मुसलमान को हकीकी तौर पर मुत्तकी और परहेजगार बनकर जिंदगी गुजारने वाला बना देता है। इसीलिए एक मुफस्सिर हैं शेख अब्दुर्रहमान अस्सादी, वो इस आयत के नीचे तफसीर करते हुए लिखते हैं कि रोजा ये तकवा पैदा करने वाले असबाब में सबसे बड़ा सबब है। जिन चीजों से इंसान के अंदर तकवा पैदा होता है, उसमें रोजा सबसे बड़ा और बुनियादी सबब है तकवा पैदा करने में, क्योंकि एक रोजेदार हकीकी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म का फर्माबरदार होता है। अच्छा, इसके अलावा भी आप देखें, जो मुहर्रमात हैं उनसे भी रोजेदार बचता है। आदमी गाली नहीं देता है क्योंकि मैं रोजेदार हूं, झूठ बोलने से परहेज करता है क्योंकि रोजेदार हूं। आदमी बीड़ी सिगरेट दिन में नहीं पीता है, इसलिए भी कि वो खाने पीने की चीज है, और इसलिए भी कि वो हराम चीज है, गंदी चीज है। आदमी दिन में नहीं पीता है, क्यों? क्योंकि उसे डर है कि उसका रोजा खराब हो जाएगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे की हिफाजत का हुक्म दिया। इसके अलावा जितनी इबादतें हैं, आप देखो, जो फर्ज नमाजें हैं उसके अंदर भी तादाद बढ़ जाती है। तरावी की नमाज में बहुत बड़ी तादाद रहती है, जागने वाली रात में बहुत बड़ी तादाद रहती है। जो लोग कुरान साल भर नहीं पढ़ते और रमजान में कुरान पढ़ते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान के दिल में अल्लाह का डर, अल्लाह की ताजीम, अल्लाह की मोहब्बत, जन्नत की तरफ रगबत, आखिरत की तरफ रगबत, ये बढ़ जाती है। और यही तकवा है कि एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखते हुए और अल्लाह से डरते हुए अल्लाह ने जो कहा है वो करे, और जिससे रोक दिया है उससे रुक जाए।
میں نے آیات صیام کا جو حوالہ دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شروع میں بھی لعلکم تتقون کا ذکر کیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اور آخر میں بھی بیان فرمایا کہ ہم نے جو صیام کے احکام بیان کیے ہیں وہ اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ تم ان پر عمل کرو اور متقی انسان بن جاؤ۔ گویا پورا رمضان دراصل آپ کو اس لیے احکام دیتا ہے تاکہ آپ ایک متقی اور پرہیزگار انسان بن جائیں۔ ایک سوال ہے کہ آخر تقوی ایسی کیا چیز ہے جس کو پیدا کرنے کے لیے پورا ایک مہینہ آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، جس میں آپ کی پوری لائف سٹائل ہی بدلنے والی ہے، آپ کا اٹھنا، آپ کا سونا، جاگنا سب کچھ بدل جانے والا ہے۔ کھانے کا ٹائم بدلے گا، آرام کا ٹائم بدلے گا، شام کو بھی کھانے کا ٹائم بدلے گا، راتوں کے اوقات بدل جائیں گے۔ ساری تبدیلی روزے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور یہ روزے کا مقصد بتایا گیا کہ آپ کو متقی بنانا ہے۔ تو کیا تقوی کوئی بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے؟ دراصل تقوی ہی وہ چیز ہے، اگر آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں کوئی بھی بھلائی چاہیے، کوئی بھی خیر چاہیے، چاہے دنیا میں آخرت میں، تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ تقوی ہی، اس سے بڑا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں۔ اور اگر آپ کو کسی مصیبت سے بچنا ہے، چاہے مصیبت دنیا کی ہو یا آخرت کی، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی سب سے بڑی چیز ہے تو وہ تقوی ہی ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا کی پریشانیاں آسان ہو جائیں، گھر کی، کاروبار کی، فیملی کی، آپ کی زندگی کی، آپ کے دل کی، دماغ کی، معاملات کی، سارے مشکلات کو دور کرنے کی اگر کوئی ایک چابی ہے تو وہ ہے تقوی۔ اور اگر آپ کو کوئی خیر چاہیے تو خیر کو پانے کا بھی ایک ہی سب سے بڑا سبب ہے، اور وہ ہے تقوی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بھی، یعنی امت محمدیہ کو بھی، اور امت محمدیہ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اور ان کی امتیں گزری ہیں، ہم نے سب کو ایک ہی بات کی وصیت کی تھی کہ تم تقوی اختیار کرنا، سب کو۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کرتے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور تمہیں بھی ہم نے یہ وصیت کی ہے ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ گویا یہ ایسی نصیحت ہے، ایسی وصیت ہے جو اللہ نے ہر انسان کو دی، ہر انسان کو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو جو وصیت کی ہے، چاہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، وہ وصیت بھی دراصل اللہ کے تقوی کی ہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ جو تقوی ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو جنت ہے اس کو ہم نے بنایا ہی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت ہم نے تیار کی ہے، اس جنت کو تیار کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ تقوی والے ہیں۔ گویا رمضان کا مہینہ یہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا ہے، رمضان کا مہینہ آپ کو جنتی بنانے کے لیے آیا۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ اس لیے آپ کو دیا ہے تاکہ آپ جنتی بن جاؤ، رمضان گزارو اور جنتی بن جاؤ۔ صرف 30 دن میں، صرف ایک مہینے میں آپ کو جنتی بنانے کے اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ گویا رمضان کا مہینہ کوئی پریشانی کا مہینہ نہیں ہے، تکلیف کا مہینہ نہیں ہے، نقصان کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو آپ کا سب سے بڑا مقصد دلانے والا مہینہ، آپ کو متقی بنانے کا مہینہ، آپ کو جنتی بنانے کا مہینہ، آپ کو اللہ رب العالمین کی رحمت کا حقدار بنانے والا مہینہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں
तकवा के ताल्लुक से बहुत सारी बातें बयान की है जो 1 घंटे के दर्स में नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं कि 1 घंटे के दर्स में आपको तकवा के बारे में सारी बात बता दी जाए। इसलिए जितना कुछ मुमकिन है मैं आपके सामने बयान करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि इंसान को उतना डरना चाहिए जितना डरने का हक अल्लाह का है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो जितना अल्लाह से डरने का हक है। लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी बात है, एक इंसान अल्लाह का जितना हक है उतना डर ही नहीं सकता, नहीं डर सकता, क्योंकि अल्लाह का हक बहुत बड़ा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों को उनकी ताकत के मुताबिक डरने का हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, कि अल्लाह से डरो जितना तुम्हारे अंदर ताकत है उतना। अल्लाह से डरना है जितना आपके अंदर डरने की ताकत है। क्या मतलब है इसका? इसका सही मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आपको हुक्म दिया है और जिससे आपको रोक दिया है, इन दोनों को अपनी ताकत के मुताबिक अंजाम देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुक्म दिया है उसमें बहुत तरह के अहकाम मौजूद हैं और सारे अहकाम पर अमल करना इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा अमल करने में आपको यह देखना है कि क्या आपके अंदर इसकी ताकत है या नहीं है। अगर ताकत नहीं है तो आपको वो काम नहीं अंजाम देना है। ये खुद रोजे की आयत से हमें पता चलता है। देखो रोजा रखना कितनी बड़ी इबादत है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर कोई मरीज है तो कोई बात नहीं, रोजा छोड़ दे। अगर कोई मुसाफिर है रोजा छोड़ दे। ये क्यों कहा गया? क्योंकि अल्लाह का हुक्म बहुत बड़ा है, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों को इजाजत दी है कि आपको अपनी ताकत देखना है कि क्या आपके अंदर ये ताकत है इस अमल को निभाने की। अगर आपके अंदर ताकत मौजूद है तो उसे अदा करना है, और ताकत नहीं है तो आपको अदा नहीं करना, बल्कि शरीयत की तालीम के मुताबिक आपको इंतजार करना है कि इसकी ताकत आपको कब मिलती है। लेकिन जो मुहर्रमात हैं जिसको अल्लाह ने मना किया है उसमें तो अपने आप को सिर्फ रोक लेना है। वहां पर आपको सारे मुहर्रमात से अपने आप को बचाना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान के अंदर ये ताकत रखी हुई है कि वो अपने आप को रोक सके। अब कोई कहे कि भाई मैं बीड़ी पीता हूं, मैं छोड़ नहीं सकता, वो झूठ बोल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को ये ताकत दी है कि अपने आप को बुराइयों से रोके, क्योंकि बुराइयों में कुछ करना थोड़ी ना है, बुराइयों में तो अपने आप को बैठा लेना है, अपने आप को रोक लेना, अपने आप को दूर कर लेना है। इसलिए जो अल्लाह के अहकामात हैं उसमें बहुत सारे दर्जात हैं, आपकी इस्तिताअत का एतबार होगा। लेकिन जो मुहर्रमात हैं उसमें आपकी इस्तिताअत नहीं, बल्कि आपको फाइनली अल्लाह ने जिससे हराम किया उससे अपने आप को रोक लेना। ये तकवा होता कहां है? बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जिनका जाहिर बहुत खूबसूरत है, जाहिर बहुत अच्छा है, उनके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पे टोपी है, कुर्ता है, पैजामा है, तो क्या ये मुत्तकी आदमी है? इनके ऊपर से लग रहा है कि मुत्तकी है। दरअसल जो तकवा है इसकी जो जगह है वो है दिल। तकवा कहां होता है? दिल में होता है। तकवा की जगह आपका दिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, आपने अपने सीने की तरफ इशारा करते फरमाया अत्तक़वा हा होना। 3 बार आपने अपने सीने की तरफ इशारा फरमाया और कहा कि तकवा यहां होता है, सीने के अंदर, दिल में। तो अगर आप चाहते कि आपके अंदर तकवा पैदा हो तो आपको सबसे पहले अपना दिल साफ करना है। दिल के अंदर से जिहालत को निकालना है, दिल के अंदर से शिर्क को निकालना है, कुफ्र को निकालना है, गंदी चीजों की शहावत और लज्जत को निकालना है। वो दिल के अंदर ही होता है। ये शहावतें भी आपके दिल के अंदर मौजूद हैं। आपको बुरी चीजें देखना है, गलत चीजों की तरफ चलकर जाना है, उसके अंदर तलब है, जो चाहत वो कहां है? आपके दिल के अंदर है।
تو अगर आप सबसे बड़ी चीज ईमान और तकवा को अपने दिल के अंदर लाना चाहते हैं तो आपको अपने दिल की गंदगियों को साफ करना है, और ये कैसे साफ होगा? तौबा के जरिए आपको तौबा करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर रो रो करके अपने सारे गुनाहों से माफी मांग करके अपने दिल को पाक साफ कर लेना। इसी तरह से आपके दिल में जो नफरत है, दुश्मनी है, कीना है, कपट है, हसद है, दूसरों के खिलाफ साजिशें हैं, ये सारी गंदगी से भी अपने दिल को साफ करना है। क्योंकि एक आदमी के गुनहगार होने के इतना ही काफी है कि वह अपने मुसलमान भाई को जलील समझे, हकीर समझे, नीचा समझे, क्योंकि ये तकब्बुर है और तकब्बुर बहुत बड़ी गंदगी है। तो अपने दिल को शिर्क, कुफ्र, बिदअत और शहवतों से भी पाक करना है, और अपने दिल को इन खराबियों से भी पाक करना है जिसको हम बोलते हैं नफरत है, दुश्मनी है, बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, बदख्वाही है, साजिशें हैं। इन सब से अपने दिल को पाक कीजिए ताकि ये पाकीज़ा चीज तकवा आपके दिल के अंदर आए, क्योंकि तकवा की जो जगह है वो आपका दिल है, आपका सीना है। ये साफ नहीं होगा तो उसके अंदर ये पाकीज़ा चीज दाखिल ही नहीं होगी, नहीं दाखिल होगी। उसको अंदर दाखिल करने के लिए अपने दिल को साफ करना चाहिए। हमारा दिल बर्तन की तरह, अगर गंदा होगा, अगर पाकीज़ा चीज के अंदर दाखिल करना चाहेंगे तो दाखिल नहीं होगी। लेकिन चूंकि तकवा अल्लाह देता है, आप नहीं लेते, आप कोशिश करते तो तकवा अल्लाह की तरफ से नाजिल होता है आपके दिल में। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छी चीजों को गंदी चीजों के साथ नहीं मिलाता। अगर आपके दिल में शिर्क है, उसके अंदर तकवा आ ही नहीं सकता, नामुमकिन है। इसलिए अपने दिल को पहले पाकीज़ा बनाएं, अकीदे की खराबियों से भी, और लोगों के साथ जो मुआमलात आपने खराब किए हुए दिल के अंदर, उससे भी पाक कीजिए। क्योंकि दिल ये तकवा की जगह है। जब दिल के अंदर तकवा आ जाता है तो उसके आसार बाहर दिखने लगते हैं। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह, कि अगर कोई आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो शआइर हैं, यानी वो चीजें जिनसे इस्लाम का इजहार होता है, जैसे हज है, काबा है, मस्जिदें हैं, अजान है, जिन चीजों से इस्लाम का इजहार होता है, वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के शायर हैं। उनकी ताज़ीम जो आदमी करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये दरअसल दिलों के तकवा की वजह से होता है। दिल के अंदर तकवा हो और आप अल्लाह के शायर की ताज़ीम ना करें, ये नामुमकिन है। तो अगर आपके दिल में तकवा होगा तो उसके आसार आपको बाहर दिखेंगे। एक आदमी के दिल में तकवा है और उसको नमाज अच्छा नहीं लग रहा है, उसको तिलावत करना पसंद नहीं है, उसको तरावी की 2 रकात में बोर हो जाता है, ये नहीं समझ में आता है। क्योंकि इबादतों से एक आदमी को चाहत उसी वक्त हो सकती है जब दिल में खराबी मौजूद है। आपके दिल में तकवा मौजूद नहीं है, इसीलिए अल्लाह की इबादत आपको भारी पड़ रही है। तो अगर कभी आपको इबादतें भारी लगने लगे तो आपको तौबा करके अपने दिल को पाक करना है। दिल आपका पाक होगा, उसके अंदर ईमान में इजाफा होगा, तकवा आएगा, तो इबादतों से ज्यादा पुरसुकून चीज आपको कोई और लग ही नहीं सकती। आपको नमाज अच्छा महसूस होगा, कुरान पढ़ने से आपको खुशी मिलेगी, मस्जिद में आपको आकर के सुकून का एहसास होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हुए आपके सीने में कुशादगी का एहसास होगा, अगर आपका दिल पाक है, उसके अंदर तकवा मौजूद है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो तकवा है, जिसको पैदा करने के लिए पूरे एक महीने का सिस्टम आपको दिया गया है, इसके फवाइद बहुत ज्यादा है। मोहम्मद बिन सालेह अल उथैमीन रहमहुल्लाह की एक किताब है, उसके अंदर उन्होंने तकरीबन 100 से ज्यादा फायदे बयान किए तकवा के। मैंने आपके लिए चंद फायदे इकट्ठा किए जिसको कुरान ने बयान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकवा का फायदा बयान करते फरमाया,
یہ فوائد آپ کو اس لیے جاننا ہے کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو رمضان ہے اس کا مقصد ہی ہے آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرنا. پورا ایک مہینے کا نظام اور اس کے روزے، اس کی عبادتیں، یہ سب کچھ آپ کے اندر دو چیزیں پیدا کرنے والی، دو نعمتیں دینے والی. ایک آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اور دوسرا کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. جیسا کہ حدیث میں کہا گیا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ رب العالمین آپ کے پہلے کے گناہ معاف کر دے گا اگر آپ نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ. یہی بات اللہ رب العالمین نے رمضان میں قیام کرنے کا بھی فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہی بات لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور ایک اور حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کو پائے اور رمضان گزر جائے، اس کے گناہ معاف نہ ہو سکے، تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رمضان پانے کے بعد بھی اگر آپ کے اوپر گناہ موجود ہے تو آپ بہت محروم انسان ہیں. تو آپ کو اللہ سے اپنے گناہوں کی مکمل معافی طلب کرنا ہے رمضان کی عبادتوں کے ذریعہ، اور دوسرا آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے. تو جو چیز آپ کو حاصل کرنا ہے اس کے چند فوائد بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے تاکہ آپ کو اس کے حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایک انسان تقویٰ اور ایمان کو اختیار کر لے، یعنی اپنے اندر ایمان پیدا کر لے اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لے، تو اللہ رب العالمین آسمان و زمین کی برکتوں کی بارش کرنے لگے. زمین سے بھی آپ کو برکتیں ملیں گی اور آسمان سے بھی آپ کو برکتیں ملیں گی اگر آپ نے تقویٰ اختیار کر لیا، اگر آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا، جو تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے، وَاتَّقَوْا تقویٰ اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. پھر آپ بھوکوں نہیں مرتے، پریشان حال نہیں رہتے. لیکن آپ نے تقویٰ اختیار ہی نہیں کیا، اس لیے بہت ساری مصیبتوں نے ہمیں گھیر لیا. آپ تقویٰ اختیار کیجئے اور اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین آپ کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دے گا. یہ تقویٰ کا فائدہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور مقام فرمایا کہ اگر انسان کو تقویٰ حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی اسے صلاحیت عطا فرماتا ہے، حق اور باطل کو فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے، صحیح راستے کی غلط راستے کی تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین ہی راستہ دکھاتا ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے سمجھ دے دی ہے کہ آپ کو نماز پڑھنا چاہیے، اور کتنے لوگ ہیں جن کو نہیں سمجھ دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہ ان کو نماز پڑھنا چاہیے. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمیں نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور کتنے سارے ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں جنہیں یہ بات اچھی طرح سے پوری گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آ چکی ہے کہ نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا. یہ فرق ہے کہ ایک آدمی کو اللہ رب العالمین بتا دے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، آپ کو اس کی تمیز آ جائے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں فرقان عطا فرمائے گا. یہ فرقان کیا ہے؟ فرق کرنے والی صلاحیت، علم کی بنیاد پر، سمجھ کی بنیاد پر اللہ رب العالمین آپ کو یہ صلاحیت عطا فرمائے گا کہ آپ فرق کر سکیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے اور برائی کا راستہ کیا ہے. یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کب؟ جب آپ کے اندر تقوی ہوگا،
جب آپ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کریں گے، محرمات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، یہی تقوی آپ کو تمیز عطا فرمائے گا خیر اور شر میں فرق کرنے کا۔ بہت سارے والدین ایسے ہیں جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو کون سا راستہ دکھانا چاہیے۔ وہ اپنے بچے کو ایسے اسکول میں ایڈمیشن دلاتے ہیں جس کی تعلیم ختم ہوتے ہوتے بچہ ملحد بن جاتا ہے۔ یہ باپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کو کہاں داخل کراؤں، اور کتنے سارے ماں باپ ایسے جو اپنے بچوں کو ایسی جگہ داخل کرتے ہیں جہاں بچے کو دین، دنیا، ایمان، تقوی سب ملتا ہے۔ سمجھ کی بات ہے۔ بعض ماں باپ اپنے بچیوں کو ایسے مدرسے، ایسے اسکول میں ایڈمیشن دلاتے ہیں کہ وہ بچی آخر ہوتے ہوتے کسی اور کے عشق میں پڑ کر کے بھاگ جاتی ہے۔ یہ ماں باپ کو پورے 8-10 سال میں سمجھ میں نہیں آیا کہ میری بیٹی کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں برباد ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نہ سمجھی۔ لیکن اگر آپ کے اندر تقوی ہو، آپ دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے تقوی کو مانتے ہیں اور تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو یہ فرق عطا فرماتا ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ عزت کا راستہ کیا ہے، ذلت کا راستہ کیا ہے، دین کا راستہ کیا ہے، گمراہی کا راستہ کیا ہے، کون سی تعلیم ہمارے خاندان کو علم اور عزت عطا فرمائے گی اور کون سی تعلیم ہم کو جہالت یا گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ تو تقوی انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی تمیز عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے والوں کو اس دنیا میں ہر قسم کی مصیبتوں سے نکال دینے کا وعدہ فرمایا کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اسے مصیبتوں سے نکالیں گے اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے آپ نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ابھی مصیبتوں سے آپ کو کیسے نکالے گا اللہ رب العالمین، یہ اللہ کو معلوم ہے، اور آپ کو روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے آپ نے سوچا ہی نہیں تھا، یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ بس آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو 3 لوگ غار کے اندر پھنس گئے تھے، غار کا منہ بند ہو گیا تھا، ان کو غار سے نکالنے والا اللہ ہی۔ تو آپ یہ مت سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے نکالے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ نے ان کو وہاں سے زندہ نکالا، یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کا کام ہے تقوی اختیار کرنا اور اللہ کے اس وعدے پر یقین رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انسان کو وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے آپ نے حساب کتاب نہیں کیا، گمان نہیں کیا، اندازہ نہیں کیا، وہاں سے ملتا ہے۔ اور یہ کیسے ملے گا یہ اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ وہ آپ کے سسٹم سے الگ ہوگا، آپ نے سوچا ہی نہیں اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ آپ نے تقوی اختیار کیا، اللہ رب العالمین کے حکم کی آپ نے تعظیم کی، اس پر عمل کیا۔ اللہ رب العالمین نے متقی لوگوں سے آخرت میں بھی بہت سارے وعدے فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا کہ جو متقی لوگ ہوں گے وہ اللہ کے پاس مجلس میں بیٹھ کر کے اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ کا دیدار بھی ہے، اللہ کا قرب بھی ہے، اور جنت کی نعمتیں بھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فرمایا بے شک جو متقی لوگ ہیں وہ باغوں میں ہیں اور نہروں میں ہیں، اور کہاں پر ہیں؟ فی مقعد صدق، سچائی کی مجلس میں، ایسی مجلس جس میں صرف سچ بات ہوگی۔ اور کہاں پر ہے؟ عند ملیک مقتدر، ایسے بادشاہ کے پاس ہیں جس کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس وہ جنتوں میں ہیں اور نہروں کے پاس ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ متقی۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، جن کو رمضان کے مہینے کے ذریعہ، روزے کے ذریعہ جن کے دلوں میں تقوی داخل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ایسے ہی لوگوں سے
उनके सारे अमाल को कबूल कर लेते। फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तकीन लोगों से उनका अमल कबूल करता है। आपने नमाज पढ़ी, कबूल हुई कि नहीं कबूल हुई मालूम नहीं, लेकिन अगर आप तकवा वाले हैं, आपके दिल में अल्लाह का तकवा मौजूद है और मुत्तकी इंसान है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अमल को कबूल करता है, उसे रिजेक्ट नहीं करता, तकवा की बरकत की वजह से। फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तकीन से कबूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और मकाम पर फरमाया कि जो लोग मुत्तकी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके खताओं को माफ कर देता है और उनके अज्र को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। आपकी गलतियां, कोताहियां, खताएं अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है और आपके अज्र को बहुत बढ़ा देता है। गोया एक आदमी नमाज पढ़ रहा है जिसके दिल में तकवा नहीं है या तकवा बहुत कम है, और एक दूसरा आदमी नमाज पढ़ रहा है जिसके दिल में अल्लाह का तकवा बहुत ज्यादा है। दोनों के अज्र में बहुत फर्क होगा तकवे की बुनियाद पर, क्योंकि जिसका दिल तकवा से भरा हुआ हो उसका अमल भी उसी दर्जे का होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि ऐसे ही लोग अल्लाह के औलिया में से हैं जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि सुनो अल्लाह के औलिया, इनके ऊपर कोई खौफ नहीं है और ना ही ये लोग रंजीदा होंगे। ये अल्लाह के औलिया कौन है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो लोग ईमान लेकर आए और जिन्होंने तकवा वाली जिंदगी गुजारी, यही लोग अल्लाह के औलिया हैं। जिसके अंदर ईमान और तकवा मौजूद है, ऐसे ही लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के औलिया में से हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके खताओं को दरगुजर फरमाता है और इनके मकाम को बुलंद करता है और इनको अपना दोस्त और अपना वली बना लेता है। आखिरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको सबसे ज्यादा बाइज्जत करार दिया है, यानी अल्लाह के नजदीक इज्जत का जो मेयार है वो तकवा है। गोया रमजान का महीना आपको इज्जत देने के लिए आ रहा है। आपके अंदर तकवा पैदा होगा और आप अल्लाह की नजर में आपकी इज्जत, आपका मकाम बढ़ जाएगा। और दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक बाइज्जत मुसलमान वही है जो तकवा वाला मुसलमान है। फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि बेशक तुम में सबसे ज्यादा बाइज्जत वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार हैं। ये तकवा कैसे पैदा होगा? तकवा पैदा करने का जो सबसे बड़ा सबब है वो ये रोजा है। रमजान का रोजा सिर्फ नहीं बल्कि मुतलक रोजा, रमजान का रोजा तो है ही, उसके अलावा साल में बहुत सारे रोजे शरीयत में मशरू करार दिए हैं ताकि आपके अंदर तकवा पैदा होता रहे, क्योंकि रोजेदार रोजा के जरिया बाकायदा अमली तौर पर तकवा की जिंदगी गुजारता है। तो आपको तकवा के लिए रोजे का एहतमाम करना है। दूसरी बात, अगर आप तकवा अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो दुनिया और आखिरत पर आपको गौर करना चाहिए, दुनिया की हालत पर और आखिरत की हालत पर। मैं इसके लिए एक हदीस आपके सामने पेश करता हूं जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ये कैसे होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई आदमी अपनी उंगली को समंदर में दाखिल करे और अपनी उंगली को निकाल करके देखे, उसकी उंगली के अंदर जो एक कतरा पानी लगा हुआ है, यही दुनिया है। दुनिया की जमीन, उसकी जायदाद, माल, दौलत, जो कुछ भी है वो सब यही एक कतरा है, और जो पूरा समंदर है ये दरअसल आखिरत है। तो अगर आपको दुनिया की हकीकत मालूम हो और आखिरत की उसात मालूम हो तो आपके दिल में तकवा पैदा करना, अल्लाह की बात मानना बहुत ही आसान हो जाता है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जो मुत्तकी बंदे हैं उनके सिफात बयान की है कि मुत्तकी बंदे कैसे होते हैं, उनका अकीदा कैसा होता है, उनका अमल कैसा होता है, उनका मामला कैसा होता है, उनका तरीका कैसा होता है। कुरान ने बहुत तफसील से बयान किया है।
تو جو मुत्तकी बंदों के सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किए हैं, उन सिफात को अपनाना है, उन्हें इख्तियार करना है, उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर तकवा पैदा होगा और आप अल्लाह की नजर में एक मुत्तकी इंसान बन जाएंगे। क्योंकि आदमी देखते हुए ही जब प्रैक्टिस करता है तो उसका दर्जा बढ़ता है, उसका मकाम बढ़ता है। एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी इस तकरीर को खत्म करता हूं, ये है कि बात लोग ये समझते हैं कि जो आदमी मुत्तकी होगा उससे गुनाह कभी नहीं होगा, और हमारे समाज में इसी वजह से मुत्तकी और अल्लाह का वली सिर्फ उनको समझा जाता है जो इंसान या तो मर गया है या तो जिसने दुनिया छोड़ करके फिर मस्जिद को अपना ठिकाना बना लिया हो और बंदों से, लोगों से, चीजों से कोई ताल्लुक ना बचा हो, वही सिर्फ परहेजगार है। लेकिन ऐसा नहीं, एक मुत्तकी और परहेजगार इंसान से बड़े बड़े गुनाह भी हो सकते हैं। बड़े बड़े गुनाह की बात कर रहा हूं, गुनाहे कबीरा का इर्तिकाब करने वाला आदमी भी मुत्तकी इंसान हो सकता है, जिसने बड़े गुनाह किए। मान लो किसी का कत्ल कर दिया उसने, क्या वो आदमी मुत्तकी हो सकता है? हो सकता है। अगर किसी आदमी ने गुनाह किया है तो मुत्तकी और गैर मुत्तकी इंसान के अंदर जो फर्क है, बुनियादी फर्क, वो फर्क क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अपने मुत्तकी बंदों का जिक्र करते फरमाया वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, फरमाया अल्लाह के मुत्तकी बंदे वो हैं कि जब उनसे कोई बेहयाई का काम हो जाता है या वो अपने ऊपर, अपनी जान पर जुल्म कर लेते हैं गुनाह के जरिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्लाह के मुत्तकी बंदे हैं उनसे गुनाह हो सकता है, बुराई का काम हो सकता है, उनके ऊपर जुल्म, अपने ऊपर जुल्म कर सकते हैं गुनाह के जरिए। लेकिन फर्क क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ज़करुल्लाह, वो फौरन अल्लाह को याद करते हैं। गुनाह होते ही उन्हें फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद आती है। ये याद क्यों आती है? क्योंकि अंदर तकवा मौजूद है। वो तकवा फौरन जो है उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जे करता है। अल्लाह का अज़ाब, उसकी सख्ती, उसका गज़ब, उसका गुस्सा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने का एहसास, जहन्नम की सख्तियां, ये सब कुछ उन्हें याद आने लगती है और फौरन क्या करते हैं? फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, वो अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करते हैं। और क्या करते हैं? और ये यकीन रखते हैं कि वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई भी गुनाहों को मुआफ करने वाला है ही नहीं। लिहाजा वो गुनाह होते हुए फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं। और क्या करते हैं? वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और वो जानने के बाद अपने उस गुनाह पर इसरार नहीं करते। यानी ऐसा नहीं कि एक बार गुनाह हुआ अब फिर कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, गुनाह हो गया तौबा नहीं कर रहे, तौबा नहीं कर रहे, तौबा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करते हो। बल्कि गुनाह हुआ और अल्लाह का खौफ उनके दिल पर छा गया, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा किया, माफी मांगा, इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकते रहे और उन्होंने गुनाह को फौरी तौर पर छोड़ दिया। ये फर्क है एक मुत्तकी आदमी के गुनाह में और एक मुजरिम आदमी के गुनाह में। जो आदमी मुजरिम होता है क्या करता है? गुनाह करता है, फिर गुनाह करता है, फिर गुनाह करता है, फिर गुनाह करता है, साल भर से गुनाह ही कर रहा है और गुनाह करने के बाद फौरन तौबा नहीं करता। वो सोचता है अगले जुमा को तौबा करेंगे, अगले महीने में तौबा करेंगे, अगले रमजान में तौबा करेंगे, जब हज करेंगे तब तौबा करेंगे, जब नहा धुलेंगे तब तौबा करेंगे। उसके पास तौबा करने के टाल मटोल के बहुत सारे रास्ते होते। लेकिन मुत्तकी इंसान जिसके दिल में तकवा मौजूद है वो मासूम नहीं होता है, वो भी गुनहगार होता है, उससे भी गुनाह होता है और वो भी हमारे समाज में ही रहता है। लेकिन वो क्या करता है? अल्लाह को याद करता है, तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, गुनाह पर इसरार नहीं करता, गुनाह को फौरन छोड़ देता है, क्योंकि ऐसा इंसान मुत्तकी और परहेजगार है। लिहाजा ये शुबहा हमारे दिलों से निकलना चाहिए कि मुत्तकी वही होगा जो मासूम होगा, ऐसा नहीं, बल्कि मुत्तकी जो होगा उससे गुनाह सरजद होगा। बस उसका कमाल ये होगा, उसकी खूबी ये होगी कि अपने गुनाह पर इसरार नहीं करेगा और गुनाह करने के बाद फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करेगा।
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ماہ رمضان ہمارے سامنے ہے اس میں پورے اسلامی آداب کا لحاظ کرتے ہوئے روزہ رکھنے، تراویح کی نماز ادا کرنے، آخری عشرے کو جاگ کر کے عبادت کر کے اللہ رب العالمین کی مغفرت اور تقوی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس عظیم نعمت رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی قدر یہی ہے کہ ہم اس کے اندر بھرپور عبادت کریں، اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو آپ سبق حاصل کریں اس سبق پر پورے سال قائم اور دائم رکھیں، ثابت قدم رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔